Hello students, we are on the last lecture of the chapter Goodwill. This is chapter number 3, Goodwill, and the last lecture. There are only 4 lectures and this is the 4th one. Third method है capitalization of profits. Capitalization of profits में 2 आते हैं. One is capitalization of average profits and other is capitalization of super profits. First we are doing is capitalization of average profits. एक पर्सन को इतने प्रॉफिट कमाने के लिए 20 लाख की कैपिटल चाहिए. एक पर्सन को वट एवर प्रॉफिट्स कमाने के लिए 20 लाख की कैपिटल चाहिए. पर वो पर्सन वो वट एवर प्रॉफिट्स 16 लाख की कैपिटल में ही कमा रहे हैं. सो आप 20 लाख की कैपिटल से वट एवर प्रॉफिट्स कमा रहे हैं. मैं वो वट एवर प्रॉफिट 16 लाख की कैपिटल से कमा रहा हूं. मतलब 4 लाख की एक इंटेंजिबल फोर्स है जो मेरी हेल्प कर रही है. मुझे कम कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ रही है उतना ही बिजनेस करने के लिए, और वो ही है हमारी गुडविल. सो व्हाट इज गुडविल? Under this method, we will capitalize the average profits. Means इतने profits कमाने के लिए आपको इतनी capital चाहिए, इतने profits कमाने के लिए आपको इतनी capital चाहिए, but आप इतनी capital में ही काम कर रहे हैं. The difference is goodwill. Capitalization of average profits. Step number 1. Step number 1, compute average profits. और कौन से average? Obviously based on future maintainable profits. Based on future maintainable profits. वो adjustment करने के बाद जो आते हैं. Step number 2, compute capitalized value of firm. मतलब इतने प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कितनी कैपिटल चाहिए, इतने प्रॉफिट्स कमाने के लिए आपको कितनी कैपिटल चाहिए, जो होगी एवरेज प्रॉफिट्स इंटू 100 बाय आर. बेसिकली ये होता है ना, देखिए प्रॉफिट्स इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू आर बाय 100. तो वो हो गया प्रॉफिट्स इंटू 100 बाय आर इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड. स्टेप नंबर 3, compute capital employed. Compute capital employed. अब I'm not explaining capital employed कैसे निकालते. You know that assets minus liabilities, assets minus outsider liabilities या partners capital plus free reserves. कैपिटल होनी चाहिए 20 लाख बट कैपिटल है 16 लाख. So how much is goodwill? Goodwill is 4 lakh. Capitalized value of firm minus capital employed. Capitalized value of firm minus capital employed.
I think I have made my point clear. क्वेश्चन नंबर 16 इसी टाइप का है, बट पेपर में ऐसा इजी क्वेश्चन नहीं आता, बट मैं आपको थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन करवा रहा हूं. राइट डाउन द क्वेश्चन. A and B are partners sharing profits equally. A and B are partners sharing profits equally. With their capitals of rupee 1 lakh each. A and B are partners sharing profits equally with capitals rupee 1 lakh each. They also had general reserve of rupee 50,000. They also have general reserve of rupee 50,000 in their books. General reserve 50,000 पड़ा हुआ है books में. It was agreed to value goodwill. It was agreed to value goodwill on the basis of capitalization of average profits. It is agreed to compute goodwill on the basis of capitalization of average profits, full stop. Profits of last 4 years. Profits for the last 4 years were rupee 80,000, rupee 1 lakh, rupee 65,000 loss, rupee 1,34,000. सो दो पार्टनर है, 1 लाख की, जनरल रिजर्व 50,000. मे बी उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया, कंपनी मैंने कन्वर्ट किया, तो गुडविल कंप्यूट करने की जरूरत नजर आई. 4 साल के प्रॉफिट्स गिवन है. रिपेयर्स टू कार एडजस्टमेंट गिवन है. रिपेयर्स टू कार amounting rupee 50,000 was wrongly debited to vehicles account. On 1st October 2017. Make it 1st October 2016. Depreciation was charged on 12% per annum straight line method. Compute goodwill. If normal rate of return is 10%. Compute goodwill if normal rate of return is 10%. So this is the question.
सॉल्यूशन। स्टेप 1, हम निकालेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। (31st March 16, 31st March 17, 31st March 18 and 31st March 19. 80,000, 1 lakh minus 65,000, 1,34,000. रिपेयर्स टू कार 50। जो रिपेयर्स होती है वो रेकरिंग एक्सपेंस है। क्या करेंगे? माइनस। रिपेयर्स क्या होती है? रेकरिंग एक्सपेंस। कार की रिपेयर, मेंटेनेंस कॉस्ट रेगुलर बिजनेस का खर्चा है, चाहे कभी कभार हो, बट कार खरीदने से तो ज़्यादा ही होता है। हमने गलती से उसे कार अकाउंट में डाल दिया। अब देखिए हुआ क्या, रेकरिंग एक्सपेंस था, गलती से मान लिया कार। क्योंकि कार मान लिया तो गलती से चार्ज कर दी डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। पहले तो रिपेयर्स है, खर्चा है, गलती से क्या मानी? डेप्रिसिएशन। तो रिपेयर्स को करेंगे माइनस क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाएगा, डेप्रिसिएशन को करेंगे प्लस क्योंकि वो एक्चुअल में डेप्रिसिएशन है ही नहीं। डेप्रिसिएशन क्यों नहीं है? क्योंकि हमने व्हीकल खरीदा ही नहीं। सो कब डेट है? 1 अक्टूबर 2016, 1 अक्टूबर 2016, दिस ईयर, नॉट दिस ईयर। ये क्यों नहीं? क्योंकि 31 मार्च 16 को खत्म हो गया। हमने कब खरीदा? 1 अक्टूबर 16। 1 अक्टूबर 16 यहां पर आता है, ये 31 मार्च 16 है, ये 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 है। सो रिपेयर्स को करेंगे माइनस क्योंकि वो हमारा खर्चा है, पर हमने गलती से मानी कार पे गलती से लगी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा नहीं है तो करेंगे प्लस 50,000 का 12% फॉर 6 मंथ्स। और डेप्रिसिएशन तो हर साल लगती है तो इसके बाद दोबारा लगेगी। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। 50,000 का 12% फॉर 12 मंथ्स, 50,000 का 12% फॉर 12 मंथ्स ओरिजिनल कॉस्ट है। यहाँ पे हमने व्हीकल खरीदा, गलती से 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगाई, अगले साल 12 महीने की डेप्रिसिएशन लगाई, अगले साल 12 महीने की डेप्रिसिएशन लगाई। सो दिस इज 1 लाख minus 50 minus 3,000 if I'm not wrong, plus 3,000 if I'm not wrong. Yes, minus 65,000 plus 6,000, 1,34,000 plus 6,000. So this is 1 lakh minus 50 plus 3, 53, minus 65 plus 6 minus 59,000, 134 plus 6, 1,40,000. So average profits are 80,000 plus 53,000 minus 59,000 plus 1,40,000 whole divided by 4. Two lakh 14,000 divided by 4, 80, 53, 59, 140 divided by 4,
53,500. Now we'll compute capitalized value. इतने प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल होनी चाहिए, इतने प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल होनी चाहिए? एवरेज प्रॉफिट्स इंटू 100 बाय आर. 53,500 into 100 by 10, normal rate of return is 5,35,000. Capitalized value is 5,35,000. Now we'll compute capital employed. Assets minus liabilities या partners capital plus reserves. Partners capital plus reserves. 1 lakh plus 1 lakh plus 50,000 is 2,50,000. So goodwill is capitalized value minus capital employed. 5,35,000 minus 250. 5,35,000 की कैपिटल होनी चाहिए ऐसे प्रॉफिट्स कमाने के लिए. आई रिपीट, 5,35,000 की कैपिटल होनी चाहिए ऐसी इतने प्रॉफिट्स कमाने के लिए, बट हम 250 में ही बिजनेस कर रहे हैं. 2,85,000 की एक इंटेंजिबल फोर्स है जो मेरे लिए काम कर रही है. 2,85,000 की एक ऐसी फोर्स है जो मेरे लिए काम कर रही है, और वो है goodwill. This is capitalization of average profits. Question number 16th. Question number 16th. The average net profits expected in future by Ram Gopal and Sons are 25,000. हम 25,000 हमें लगता है फ्यूचर में कमाएंगे. The capital employed is 180. The normal rate of this compute goodwill as per capitalization of average profit method. Average profits 25,000. Capitalized value, average profits into 100 by R, 25,000 into 100 by 10, 2,50,000. Capital employed, $1,80,000. Goodwill, capitalized value minus capital employed. $2,50,000 minus 1,80,000 is equal to ₹70,000. Let's move to the last method, that is capitalization of super profit method.
capitalization of super profit method. Step number 1, compute super profits. अच्छा, सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं उसके स्टेप्स में लिखवा चुका हूं आपको. व्हाट इज नंबर 1? कंप्यूट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, कंप्यूट एवरेज प्रॉफिट्स, कंप्यूट कैपिटल एम्प्लॉयड, compute normal profits, compute super profits, that is average profits minus normal profits. Step 2, goodwill is equal to super profits into 100 by R. That's it. और अगर सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आ गए तो गुडविल 0 हो जाएगी, क्योंकि हम नेगेटिव से गुडविल कंप्यूट नहीं कर पाएंगे. अगर क्वेश्चन में नहीं पता कि कौन सा मेथड लगाना है, सिर्फ लिखे कैपिटलाइजेशन मेथड, तो आप दोनों मेथड लगाएंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. अगर क्वेश्चन में गिवन है कंप्यूट गुडविल यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड, आई रिपीट, अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूट गुडविल यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड, तो आप दोनों मेथड से कंप्यूट करेंगे. इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द मेथड ऑफ capitalization, that is capitalization of average profits or capitalization of super profits, then students are advised to compute goodwill by using both methods. दोनों मेथड से कंप्यूट करेंगे. आंसर जनरली सेम आता है, 99% केसेस में सेम आता है. फर्क होता है सिर्फ ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का, जो हमने अभी किया नहीं है वो हम थर्ड बुक में करेंगे. ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट. अदरवाइज फिक्टिशियस एसेट्स का डिफर कर सकता है. नॉर्मली 99% केसेस में, रादर मोर देन 99% केसेस में दोनों मेथड से आंसर सेम ही आता है. एक एग्जांपल लिखिए. एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ ABC, average net profit of ABC is rupee 54,000 per year, is rupee 54,000 per year, full stop. Capital employed in the business is rupee 3 lakh. Capital employed of the business is rupee 3 lakh, full stop. Compute goodwill using capitalization of super profit method. Compute goodwill using capitalization of super profit method if normal rate of return is 10%,
normal rate of return is 10%. Remuneration of the partners is rupee 9,000. Remuneration of the partners is rupee 9,000. And undervaluation of stock is rupee 4,000. Undervaluation of stock is rupee 3,000. मैंने क्या लिख पाया था? 3,000 लिख लीजिए. अगर पहले 4 बोला था तो 3 कर दीजिए. हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है. अमाउंट हार्डली मैटर्स. बुक में फाइनल में कौन सा यही क्वेश्चन आना है. अमाउंट हमेशा वेरी कर सकती है. अच्छा, कौन सा स्टॉक है पता नहीं. ओपनिंग के क्लोजिंग ये मेंशन नहीं है. यही क्वेश्चन का मेन पॉइंट है. मुझे यही पॉइंट एक्सप्लेन करना था. हम एवरेज बेसिस पे स्टॉक को चेंज करते हैं. सॉल्यूशन. सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट्स, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स. एवरेज प्रॉफिट्स क्वेश्चन में गिवन है 54,000. बट पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देनी है 9,000. रेम्यूनरेशन इज, व्हाट इज रेम्यूनरेशन? रेकरिंग एक्सपेंस, हर साल पे होती है. -9,000. रेम्यूनरेशन इज 9,000. अच्छा, अगर 2 पार्टनर होते तो 9,000 इंटू 2 ईच. अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, कौन सा स्टॉक? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन तो इट इज क्लोजिंग स्टॉक. अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन कौन सा स्टॉक है तो ये क्लोजिंग स्टॉक है. क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम हो गई. क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम हो गई तो क्लोजिंग स्टॉक इनकम होता है. इनकम कम होगी, प्रॉफिट कम हो गया तो अब बढ़ा दो. ये रूल मैंने आपको करवाया था आई गेस लेक्चर 3.2 में. सो रेम्यूनरेशन प्रॉफिट को कम करता है माइनस. क्लोजिंग स्टॉक कम है, इनकम कम है, प्रॉफिट कम है तो बढ़ा दो. अगले साल जाएगा ओपनिंग स्टॉक में. बट यहां पर तो 1 साल की वैल्यूएशन गिवन है. इस क्वेश्चन में 1 ही साल की वैल्यू गिवन है. सो ओपनिंग स्टॉक विल बी इग्नोर. So the average profits are 54 plus 3, 57. 57 minus 9, 48,000. $49,000. यहीं से कैलकुलेशन गलत हो जाएगी. 49. 54 minus 9 is 45. 45 plus 3. Now, capital employed. How much is capital employed? 3 lakh. Normal profits. Capital employed, ये 48,000 है. Average profits. Capital employed is to R by 100. 3 lakh into 10 by 100. 30,000. How much are super profits? Average profits, what you are earning actually, minus normal profits, what you are supposed to earn. इनका डिफरेंस आ जाता है. यू आर अर्निंग एक्चुअली, यू आर सपोज टू अर्न ऑन द कैपिटल के एम्प्लॉयड बेसिस. ये ज़्यादा होता है तो गुडविल ज़्यादा हो जाती है. 48,000 माइनस 30,000 is 18,000. Super profits is 18,000. How much is goodwill? Super profits into 100 by R. 18,000 into 100 by 10. Rupee 1,80,000. 1,80,000. 48,480. Yes. अगर आप इससे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से करेंगे,
कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से भी सेम आंसर आ रहा है। ये देखिए 48,000 इंटू 100/10 4,80,000। 4,80,000 क्या हुई? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख, 480 माइनस 3 लाख इज 180। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। A firm earns ₹50,000 as its annual profits। ये हमारे हो गए एवरेज प्रॉफिट्स। The rate of normal profit being 10%, rate of interest हो गया 10%. The assets of the firm amounted to 5 lakh and liabilities 1 lakh. So capital employed होगी हमारी assets minus liabilities, 5 lakh minus 1 lakh, 4 lakh. Normal profits, capital employed into 100 R by 100, 4 lakh into 10 by 100, 40,000. Super profits, average profits minus normal profits, 50,000 minus 40,000, 10,000 is super profits. And how much is goodwill? Capitalization of super profits. Super profits into 100 by R. 10,000 into 100 by 10 is ₹1 lakh. पहले सुपर प्रॉफिट्स निकाले, फिर 100 बाय आर करके आपने कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल कंप्यूट की। क्वेश्चन नंबर 18 आप अपने आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 इज फॉर प्रैक्टिस योरसेल्फ। क्योंकि असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, अब आप टीएस गरेवाल, कल्याणी टुगेदर विद किसी भी बुक के क्वेश्चंस कर सकते हैं। नाउ यू आर ओपन टू डू दैट, क्योंकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं। बिकॉज हमारे कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हार्डली मैटर्स। ये देखिए एक टॉपिक पेंडिंग है, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। कौन सी फर्म की गुडविल ज्यादा होगी, कौन सी फर्म की गुडविल कम होगी, ये डिपेंड करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स पर। कौन सी चीज गुडविल बढ़ाती है, कौन सी कम करती है, ये हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। कौन सी चीज़ें आपकी गुडविल पे इफेक्ट करती है, ये मैं बोल रहा हूँ, आप अपने नोट्स में लिखेंगे। दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स वो होते हैं जो बिजनेस के विद इन गुडविल को बढ़ाते या कम करते हैं। सेकंड इज एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये वो फैक्टर्स होते हैं जो एक्सटर्नली हेल्प करते हैं, बिजनेस के आउटसाइड से हमें हेल्प मिलती है। कुछ पांच फैक्टर्स हैं इसके अंदर जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग, इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, नंबर 1, longer establishment of business. Number 1, longer establishment of business.
जो बिजनेस ज़्यादा देर काम करता है उसकी गुडविल ज़्यादा होती है, जो बिजनेस कम दिन काम करता है उसकी गुडविल कम होती है। लॉन्गर यू वर्क, हायर यू अर्न। 2, एक्सेस टू सप्लाईज, एक्सेस टू सप्लाईज, ACCESS, एक्सेस टू सप्लाईज। आप रॉ मटेरियल कितनी जल्दी कवर कर सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे कि कोल माइन कंपनी है, 2 कोल माइन कंपनी है, ए एंड बी। ए के पास माइनिंग राइट है, बी के पास अभी माइनिंग राइट नहीं है, तो किसकी गुडविल ज्यादा होगी? ए, क्योंकि वो कोल माइन करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, लोगों को पता है। बी के पास अभी माइनिंग राइट ही नहीं है। सो एक्सेस टू सप्लाईज इज द सेकेंड इंटरनल फैक्टर। थर्ड, एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट। If you have better management, your management is doing good, the goodwill would be on a higher side, goodwill ज़्यादा रहेगी। अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं है तो आपकी गुडविल नीचे रहेगी, डाउन हो जाएगी। Fourth, quality of the product. Quality of the product. अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, you will enjoy more goodwill. अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी आपके कॉम्पिटिटर्स दे रहे हैं, आपकी गुडविल अनफेवरेबल सिचुएशन में जाएगी। सो द फोर्थ इज क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। फिफ्थ, other factors like patents, labor relations, etc. Other factors like patents, labor relations। जैसे सैमसंग का फोन है, एज स्क्रीन है, उनके पास पेटेंट है, वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, उनके पास पेटेंट है। सो व्हेन न्यू टेक्नोलॉजी कम्स इन, जब कोई मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आती है तो जिसके पास वो टेक्नोलॉजी पहले आती है उसकी गुडविल ज़्यादा बेटर वर्क करती है। लेबर रिलेशन, देयर आर 2 फर्म्स, एक फर्म के लेबर के साथ ज़्यादा अच्छे रिलेशन है, दूसरी लेबर स्ट्राइक पे जाती रहती है। सो दैट मीन्स जिसके रिलेशन अच्छे हैं वो ज़्यादा बेटर गुडविल कंडीशन में रहेगी। सो व्हाट वी हैव, longer establishment of business, access to the supplies, efficient management, quality of the product, and other factors like labor relation, etc. And what are the external factors? ये वो फैक्टर्स हैं जो मार्केट की वजह से गुडविल को बढ़ाते हैं। इसमें भी 5 हैं। फर्स्ट मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन, जैसे नोटबंदी हुई, डीमोनेटाइजेशन, उस टाइम पेटीएम ने कितना अच्छा काम किया। मार्केट की सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे, बैंक में पैसे कम होते थे, तो जिनके पास पेटीएम वैले था बैंक से उन्होंने पेटीएम में ट्रांसफर किया, क्यूआर कोड से पेमेंट होनी शुरू हो गई। मार्केट की सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है। अब जो स्कूल्स ऑनलाइन लेक्चर्स अच्छी तरह दे रहे हैं उनकी गुडविल अच्छी हो रही है, जो स्कूल्स इस सिचुएशन में ऑनलाइन स्टडी नहीं दे पा रहे हैं अच्छी तरह, उनकी गुडविल डाउन हो रही है। नो वन वाज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मार्केट सिचुएशन। 2, लोकेशन।
आपकी सेलिंग यूनिट, बिजनेस यूनिट कहां पर है? इफ द लोकेशन इज गुड, हायर प्रॉफिट्स, मोर गुडविल. इफ लोकेशन इज नॉट गुड, लेस प्रॉफिट्स, लेस गुडविल. थर्ड, रिस्क. अगर आपका बिजनेस रिस्की है तो गुडविल को बनने में टाइम लगेगा. हाँ, रिस्की है तो प्रॉफिट ज्यादा होंगे, हायर रिस्क हायर प्रॉफिट्स. बट अभी आपका बिजनेस रिस्की है तो गुडविल बनाने में टाइम लगेगा. अगर रिस्क कम है, बिजनेस में रिस्क कम है, तो गुडविल बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. So the third is risk attached to the business. Next, past performance. अभी तक हमने जितने सम्स किए हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस की वजह से. सी एवरेज प्रॉफिट्स, पुराने प्रॉफिट्स. आपके पुराने प्रॉफिट ज्यादा हैं तो गुडविल कंप्यूटेशन में ज्यादा निकल के बाहर आएगी. आपके पुराने प्रॉफिट्स कम है तो गुडविल बाहर निकल के कम आएगी. ऑलवेज नॉट ट्रू. बताया था आपको, गुडविल इज सब्जेक्टिव इन नेचर, असेसमेंट. कई बार हम ऐसे गुडविल बोल देते हैं, भाई आप मेरा कमर्शियल खरीद लो, मुझे आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे ब्रांड नेम. कोई मेथड नहीं, 10 लाख ही सेड ओके चलेगा. दैट इज आर्बिट्री मेथड, दैट इज इंडिविजुअल मेथड, सब्जेक्टिव मेथड. लास्ट, अदर फैक्टर्स लाइक कस्टमर रिलेशंस, आफ्टर सेल सर्विस, etc. Other factors like customer relations, after sale service, etc. आईफोन की आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है, उसको गुडविल का बेनिफिट मिलता है. सैमसंग की आफ्टर सेल सर्विस इतनी अच्छी नहीं है, उनकी गुडविल की वैल्यूएशन कम होती है उस केस में. सो ये वो फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नली गुडविल को इंपैक्ट करते हैं किसी बिजनेस की, जिसमें है मार्केट सिचुएशन, लोकेशन, रिस्क, past performance and other factors. So there are total 10 factors, 5 internal, 5 external. Other factors को एक मानेंगे तो 9. This is all about goodwill. Next chapter हमारा रहेगा 4th, CPSR, change in profit sharing ratio. अगर पार्टनर्स रेशियो चेंज करते हैं तो उसकी कंपटीशन कैसी रहेगी. That's all for today's lecture. Chapter goodwill is done. Bye bye, take care, God bless.